Prime Minister Narendra Modi said on Thursday that the latest example of what Modi's guarantee stands for is the Citizenship Amendment Act, CAA. He in fact said that the country has started granting citizenship under the CAA. He accused the Samajwadi Party and Congress of spreading lies about the CAA and in fact also trying to push the country towards riots. Now, Mr. Modi's remarks came a day after the first set of citizenship certificates under CAA were issued in New Delhi to 14 people, nearly 2 months after rules under this law were notified to grant Indian nationality to persecuted non-Muslim migrants from 3 neighbouring countries. Now, this is not just the PM talking about it. In fact, the HM also talked about it. The Home Minister on May 14th assured the Mathua community in West Bengal that its members would get citizenship under this new law, even as West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee kept saying that she would stop the CAA implementation. Remember that the CAA has been an important flashpoint between the BJP and the opposition for long, but the BJP has crafted this narrative along humanitarian lines, with the Prime Minister himself quoting Gandhi today, saying that even Mahatma Gandhi would have approved of such a pro-humanity measure. The TMC has opposed the CAA wholeheartedly, with the party chief saying that she will revoke the implementation. Others such as DMK have done the same, even as the Congress has been careful in opposing it but not really talking a lot against it in its manifesto or in the present campaign. So will the CAA boost the image of the BJP, and does it really help people? How important is citizenship for the thousands and hundreds of Hindus who actually escape religious persecution and come to India? That is what we will discuss tonight. We have some people with us who will tell you what they went through. But first, let's listen in to what the Prime Minister said, and also let's watch the special report. भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। A 11-year struggle for an Indian identity. 4 Pakistani Hindu inhabitants of this refugee camp were granted Indian citizenship yesterday. The Union Government on 15th May 2024 granted citizenship certificates to more than 300 people who applied under the Citizenship Amendment Act of 2019. Meera Devi, born and brought up in Pakistan's Sindh, came to India with her family in 2013. Her son and daughter have been granted citizenship. यहाँ बेनज़ीर भुट्टो थी तो हमारी बहुत हेल्प होती थी वहाँ पे। जब से वो हमारी बेनज़ीर भुट्टो सिंध में रहते थे, वो चली गई, वहाँ की प्रधानमंत्री थी वो चली गई। जब से हमारे हालात वहाँ थोड़े बिगड़ने लगे तो हमने सोचा वो ही नहीं रही तो हमें भी रहने का यहाँ कोई अधिकार नहीं। In her adolescence, Meera's daughter Yashoda came with her family to India. Now, a mother of 4, Yashoda is the first in her family to be granted Indian citizenship. हमें तो नागरिकता मिली, हम बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमने कल शाम को कुछ मिठाई लाई थी, भगवान को चढ़ाई, कुछ बच्चों को बांटी और घर में भी बहुत खुशी मनाई, सबको बधाई दी। भारत के तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ की जैसे मंदिर है ये है, हमें बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई है, वहाँ पे जैसे पढ़ने लिखने नहीं जाते थे। The citizenship has ignited the hope of a better future among Pakistani Hindu refugees living in North Delhi's Majnu का टीला। मैं महत्व ये रखता है कि जैसे मान चलो मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ या कोई बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ लोग हमें ये भी कहते थे कि ये पाकिस्तानी हैं, वो भी हमारे से पाकिस्तानी का टैट हमसे ख़त्म हो गया जी। मुझे इस चीज़ का फ़र्क लगता है कि मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक बन जाऊँ, बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ताकत है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। These narrow gullies
in a refugee camp in Majnu Ka Tila house many memories and sentiments of Pakistani Hindus who came to India in 2013 in search of an Indian identity. A few people living here have been granted Indian citizenship by the Union government, while for others it's under due process. What remains a question is how will the citizenship create an impactful change in the lives of these people? With camera person Shiv Kumar, this is Tanushka Datta for NDTV. So many Hindu refugee families from Pakistan have been living in India for over a decade, in fact also from Bangladesh. Now these are camps that symbolize hope of Indian citizenship under the recently notified Citizenship Amendment Act 2019. Under this act, let me remind my viewers, undocumented non-Muslim migrants, Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis and Christians from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who came to India before 31st of December 2014 are eligible for Indian citizenship. Now of course 14 of them have been granted citizenship yesterday by the Home Secretary. Besides Adarsh Nagar in Delhi, there are 4 more camps in the national capital for Hindu refugees from Pakistan. One, of course, 2 in Majnu Ka Tila, the report that you saw, and of course 1 in Rohini and Shahbad Dairy each. We have some people who have benefited from the citizenship. In fact, 2 of our guests today, Bhavna and also Harji, are among the 14 people who actually received the CAA citizenship certificate yesterday from the Home Secretary. We also have their father with us, Mr. Madhav. Thank you, sir. Thank you so much for joining us on this discussion. Let me go across to Bhavna first, and let me also tell you a little bit about Bhavna. Bhavna is 18 years old and she came to India 10 years ago in 2014, and she is a class 11 student, and she's somebody who is very fond of music. And let me ask her, Bhavna ji, कल जब आपको मिला ये सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद, तो आपको कैसा लगा और ये सिटीजनशिप आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? हमें कल सिटीजनशिप मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे हमारे हाथ में पूरी जन्नत आ गई है। हमें बहुत अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमें सीए सर्टिफिकेट दिया है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हम धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर सा स्वर्ग जैसा हमें भारत देखने का मौका दिया, क्योंकि हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं था तो हमें घूमने कहीं जाना होता था तो हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, तो हम स्वर्ग जैसा भारत देख सकते हैं। राइट। भावना जी, आप 8 साल की थी जब आप भारत आ गई। आपको उसके पहले, आप हैदराबाद सिंध की हैं, वहाँ से आप आई थी, आपका पूरा परिवार आया था, 11 लोग आए थे। ये बताइए कि वहाँ की जो ज़िंदगी थी उसके बारे में आपको कुछ भी याद है? कहाँ वहाँ पे आप स्कूल जाती थी, नहीं जाती थी, कैसा रहा था वहाँ पे? वहाँ मैं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन मेरी 2 बड़ी बहनें वो जाती थी, लेकिन वो स्कूल तो जाती थी लेकिन मुसलमानों का बुर्का पहन के जाती थी, और उनको वहाँ कलमा पढ़ाया जाता था, मतलब कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। मतलब बर्तन में जो खाना खाते थे वो मुसलमानों का अलग था, हिंदुओं का अलग था। और उनको मतलब हिंदू जो हमारी बहनें थी हिंदू, उनको खाने के लिए सोनार बर्तन में मतलब खाना देना ऐसे बोलते थे, और उनको फिर पता चल जाता है, फिर वो बर्तन के भी पैसे मांगते हैं। Bhavna's father Madhav is also there with us. Mr. Madhav had a banana farm in Hyderabad, Sindh. He also had a small business there. Of course, he had to leave all of that and come to India. And Madhav जी, ये बताइए कि आप जब आए भारत में तो क्या दिल्ली आपका फर्स्ट स्टॉप था कि आप कोई और स्टेट गए थे पहले? हम 2014 में जब आए तो पहले हम गुजरात में गए थे, 4 साल गुजरात में रह के 4 साल के बाद हम दिल्ली में आए यहाँ। अच्छा, और गुजरात से आप फिर दिल्ली में आए, और दिल्ली में आप कितने सालों से हैं? और ये सिटीजनशिप आपको अभी तक मिला नहीं है, तो आपके लिए, जैसे भावना भी कह रही थी, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और CAA, इससे आप सहमत हैं और आपको लगता है कि ये आपके परिवार में जितने भी लोग हैं और आपके साथ जितने लोग आए थे उन सबको मिल सकता है? क्योंकि हम दिल्ली में 7 साल से रह रहे हैं और 7-8 साल रहे हम दिल्ली में हो गए, तो हमें ये सपने में नहीं सोचा था कि हमको सिटीजनशिप ये मिलेगी। और हमें जो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये करके दिखाया, बहुत हमें पूरे परिवार को, पूरी बस्ती में जश्न हुआ, बहुत खुशी हुई। पूरे भारत से हमारे को जो हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं वहाँ आए हैं, गुजरात में, जोधपुर में, सब हमारे को बधाई दे रहे हैं कि मोदी जी ने ये आपको
ये सिटीजनशिप दी और हमें इन्हें से बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि हम भारत माता के नागरिक हो गए। इसमें मेरे परिवार के 5 लोग और मैंने भी अप्लाई कर दिया है और हमारे और कुछ लोगों ने भी अप्लाई कर दिया है, तो सबको सिटीजनशिप मिल रही है। तो हम यहाँ भारत में रहकर, हम तो पहले 2014 से रह रहे हैं, जैसे हमें तकलीफ तो उठानी पड़ी, सब कुछ उधर छोड़ के आए, अपना बिजनेस सब कुछ कारोबार छोड़ना पड़ा, हमारे मजबूरी इतनी मजबूर हमारे को कर दिया, उन लोगों ने बहुत मजबूर कर दिया, इसलिए हमें भारत में आ गए। भारत हमारे जैसे स्वर्ग की तरह लगा। हम 11 साल तक से यहाँ हम जो ये रह रहे हैं कि हमने ये हमारे मोदी जी सरकार ने हमारे लिए बहुत, अमित शाह जी ने और जो उनके हम और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, आरएसएस के कार्यकर्ता है, उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया, बहुत बहुत सहयोग किया। हमें हमारी गारंटियाँ उठाई, हमारे लिए दिन रात उन्होंने कोई भी अगर परेशानी होती थी, हमारे जो वहाँ से लोग आए थे तो उनको उन्होंने बहुत हमारे लिए उन्होंने तकलीफ उठा के रात के टाइम में, दिन के राशन में, कोरोना में जो हम बैठे रहे 5-6 महीना, तो पूरी बस्ती को संभाला और उनमें पूरा राशन दिया। और हमें बहुत इन सब भाइयों को, मोदी जी को और अमित शाह जी को और अपना विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं का हम बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं कि हमारी ये हेल्प की, और आगे भी हमारे हेल्प, और जो भाई आ रहे हैं, हमारे पीछे भाई फंसे पड़े हैं, उनकी भी हेल्प करें। हर जी, आप बताइए कि आप तो 30 साल के हैं, तो आपका एक छोटा सा बिजनेस है, ये बताइए कि आपको, आपकी जो लाइफ थी पहले 10 साल पहले पाकिस्तान हैदराबाद वाली, वहाँ पे एक रिलीजियस परसिक्यूशन क्या सच में हुआ था आप लोगों के साथ? आपको वहाँ पे, जैसे आपके फादर भी बता रहे हैं कि काफ़ी जो है दिक्कतें आई थी, प्रॉब्लम्स आया था और बहुत ज़्यादा जो है एकदम हेल जैसा जीवन हो गया था, तो आप थोड़ा सा, आपको याद होगा कि कैसी लाइफ थी वहाँ पे और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था आपको वहाँ, यहाँ आने से पहले? मैडम, हमारे को बहुत वहाँ पे दिक्कत हुई। हमारे के वहाँ पे जो मुसलमान लोग थे हमारे को बहुत परेशान करते थे, हमारे को इतना परेशान करते थे। हम जब पढ़ने जाते थे तो हमारे जो वहाँ एंट्री से पहले हमारे को वो 7 कलमे पढ़ाए जाते थे। जो हिंदुस्तान में हमारे को फ़र्क दिखा है कि यहाँ पे हमारा जैसे मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं तो हम उसको कोई मतलब जो ये होता है अपना जो धर्म की जो है बातें हम मुसलमानों को नहीं पढ़ाते थे। हमारे को ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें गंदी चीज़ें हैं वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। और हमारे को यहाँ पे आके बहुत अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि जो ये हमारे को आज ये सर्टिफिकेट मिला है। पहले हमारे को ऐसे लगता था कि हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा, लेकिन ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमारे को हमारे जीवन में कुछ मकसद मिला है और अब हमारे को ये लग रहा है कि हम इस भारत के अंदर कुछ कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। हमारे बच्चों का भी जीवन हमारे को बहुत ना ऐसे ही कहा कि जैसे हमने जीवन अपना काटा है, हमारे बच्चे भी उसी तरीके से जीवन काटेंगे। हर जी, आपको ये जो सर्टिफिकेट मिला, इसके लिए आपको ऑनलाइन कुछ फिलअप करना पड़ा था, और इसके लिए क्या मदद आपको मिली थी सरकार या किसी संस्था की तरफ से? हाँ, इसमें हमने साइबर कैफे से ये फार्म भरवाए थे और फिर हमारे को पोस्ट ऑफिस में बुलाया गया था, जो हमारे वहाँ पे सारी इंक्वायरियाँ हुई थी, कहाँ से आए, कितने, कौन सा आपका एंट्री है, सारे हमारे कागज चेक किए गए थे। अच्छा, और भावना, बस आपसे, आप गाना भी सीखती हैं तो कुछ हमारे लिए गा देगी? हाँ, ज़रूर गाऊंगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, षष्ठश्यामना मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लक सुमिता द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदं वरदं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं।
Thank you, Bhavna. Thank you, Madhav ji. और thank you, Harji, हमसे जुड़ने के लिए. Though the opposition has said that there's a political agenda to the BJP bringing in the CAA now, the rules now, just before elections, there is no denying that this has also brought smile to many faces and hope to many lives, even as this continues to be a political flashpoint. That's all we have for you in this show.